today, let's start with chapter number 5, Food and Nutrition. In this chapter, we'll study about types of nutrients. देखो हमारे carbohydrates, fat, proteins, vitamins, minerals and water और fish, ये सब क्या है? Nutrients हैं. Basically हमारे water and fish is not a nutrient, बस वो include करा जाता है. ठीक है. और food कैसे हम preparation करते हैं, balanced diet, food का कैसे preservation होता है, and lastly we will see some healthy eating habits. Now let's start with the chapter. Food. What is food? It is a necessary to live. All living beings need food for survive. Food gives them energy to work and keep them healthy. Food हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? वर्क कर सके और हेल्थी रह सके. ठीक है. फूड रिपेयर्स द worn out tissue of our body and food also helps in the growth of our body. हमारे जो worn out टिश्यूज है उनको रिपेयर करती है, बॉडी की ग्रोथ में भी हमें हेल्प करती है. Therefore, food is one of the basic need of living. जो food क्या है? It is one of the basic need of living. We eat different kind of food. Different food items have different nourishing constituents. We need to live in. इन constituents को क्या कहते हैं? They are known as nutrients. इनको हम nutrients कहते हैं. The process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. जो भी आपको फूड की जरूरत होती है किसके लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. These are the important food items that are needed by our body, like vegetable, fruit, cereals, pulses, milk, egg, and meat. Types of nutrients. There are nutrients required by our body includes carbohydrates, fat, proteins, vitamins, and minerals. ठीक है. Beside our body, इसको रफे या water की भी बहुत need होती है. Now one by one we will study about all the types of nutrients. First is carbohydrate. It is the main source of energy. Food rich in carbohydrates are called energy giving. जो भी food carbohydrate rich होता है वो उसे क्या कहा जाता है? It is known as energy giving. इसे energy giving food कहा जाता है. And some food rich in carbohydrates जैसे आपका राइस हो गया, पोटैटो हो गया, wheat हो गया, स्वीट हो गया और बनाना हो गया. These are carbohydrate rich. Next is people who are involved in hard physical work like sport person and labor. They need lot of energy. So they should eat more carbohydrate. If do not get sufficient carbohydrate, they may feel tired and weak. आपको ज़्यादा carbohydrate rich food खाना चाहिए जिससे आप जल्दी से थको ना, टायर्ड ना हो. स्पोर्ट पर्सन हो गए, ऐसे लेबर हो गए जो काम करते हैं, वर्क साइट पे काम करते हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना चाहिए फॉर मोर एनर्जी. नाउ फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट और कीप आवर बॉडी वार्म. जैसे ऑयल हो गया, नट्स हो गए, बटर हो गए, ठीक है, और आपका मीट हो गया. दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ फैट. आवर बॉडी स्टोर्स एक्स्ट्रा फैट फॉर फ्यूचर यूज. और जो हमारी बॉडी होती है वो एक्स्ट्रा फूड को फ्यूचर यूज के लिए क्या करती है? स्टोर करके रखती है. बट टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर अस. लेकिन ज़्यादा फैट भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता. फैट क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ करता है और कीप द स्किन रिंकल फ्री एंड सॉफ्ट. और जो आपकी स्किन है उसको रिंकल फ्री और कैसा रखता है? What are these? These are fat. Now प्रोटीन हमें किसमें हेल्प करता है? बॉडी की ग्रोथ के लिए. तो इसे क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज, इनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग. Protein helps our body to grow. Protein helps our body to grow. They also repair our damaged body parts. ये क्या करते हैं? जितने भी हमारे damaged body parts हैं उनको रिपेयर करते हैं. फूड आइटम्स जो आपके प्रोटीन रिच होते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. जैसे आपका फिश हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, सारे आपके पल्सेस हो गई, दालें हो गई, ये क्या है? ये प्रोटीन रिच फूड. Children keep growing all the time, therefore they should eat lot of protein rich food. A protein rich diet also required for healthy hair and skin. अगर आप प्रोटीन रिच डाइट करो तो वो आपकी स्किन के लिए भी और आपकी हेयर्स के लिए भी क्या होती है? हेल्थी होगी. नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स. जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू फाइट डिजीज. मिनरल्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कंपोनेंट जैसे आपके बोन्स, ब्लड और टी. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, ये जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं? दे आर
दे आर रिच सोर्सेज ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, और जो वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव, क्योंकि हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज. तो दीज ऑल आर वाइटामिन एंड मिनरल्स. Next is roughage. Apart from nutrients, our body also needs roughage for proper digestion of food in our body. Roughage is just a fiber जो आपके food item में present होता है and they are not digested. ये digest नहीं होते हैं, they help in its digestion और removal of waste. किसमें help करता है, digestion में और waste के removal. Therefore, we should include fibrous fruit or vegetables and salad in our daily life. ठीक है, आपको fibrous fruits, vegetables ये आपको डेली डाइट में क्या करना है, अपने इंक्लूड करना है. नेक्स्ट इज वाटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. वाटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. वाटर मेक्स अप 3/4 ऑफ आवर बॉडी. जो हमारा बॉडी वेट होता है उसमें 3/4 क्या होता है, वाटर ही होता है. एंड वाटर हमारा किसमें और हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. फूड का ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट हेल्प्स इन डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, और ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करता है. एंड बॉडी लूजेस लॉट्स ऑफ वाटर, किस फॉर्म में, स्वेट और यूरिन के फॉर्म में. और जब हमें थर्स्ट, हम देखा ना, व्हेन वी फील थर्स्टी, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज लेस. जब आपको बॉडी का पानी कम होता है ना, तभी हमें प्यास लगती है. We feel thirsty when the amount of water in the body becomes less, and we should drink 2 to 3 liters of water every day. 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 3 लीटर पानी हमें रेगुलरली पीना चाहिए. Next is balanced diet. The food we regularly eat is called our diet, and a balanced diet contains all the nutrients. देखो, जिस डाइट में आपके सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है इन अ राइट अमाउंट, जैसे आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट. वी नीड टू टेक बैलेंस डाइट फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. ईटिंग टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज. अगर आप ज्यादा खाओगे या कम खाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको डिजीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज हेल्थी ईटिंग हैबिट्स. व्हाट आर द हेल्थी ईटिंग हैबिट्स? Eat slowly and chew the food properly. Do not drink water while eating. देखो, आपको खाने को धीरे खाना और चबा के खाना, ठीक है. और आपको वाटर, जब आप खाना खा रहे हो, जब आपको पानी लेके पीना है, ड्रिंक वाटर आफ्टर सम टाइम यू फिनिश ईटिंग. आपको जैसे आप खाना खा लो, खत्म कर लो, तब आप क्या करोगे, अपना पानी पियोगे. डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग. डू नॉट ओनली ईट ओनली व्हाट यू लाइक इन डिफरेंट काइंड. खाली ये नहीं है कि आपको वही खाना है जो आपको पसंद है, आपको कुछ अलग फूड खाना. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. नाउ प्रिपेयरिंग फूड. अब हमें फूड प्रिपेयर करना है. सम फूड आइटम्स आर यूजुअली ईटन रॉ, जैसे फ्रूट्स हो गए. सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, कैबेज, रेडिश एंड कुकुम्बर, इनको भी हम रॉ खा सकते हैं एज सैलेड. And the food items get digested in our body easily, even if we eat them raw. We should remember to wash raw food items properly before eating. It makes them free from dust and germs. Raw food should be cut and open for a long time. Raw food को आप cut करोगे, open रखोगे for a long time. Cutting and keeping raw food open for a long time before eating exposes them to dust. अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक उसको खोल के रखोगे तो डस्ट या फिर जर्म्स लग जाते हैं आपके ऊपर. और अदर हैंड, सब फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड. बिसाइड मेकिंग फूड टेस्टी, कुकिंग मेक्स इट सॉफ्टर एंड इजियर टू डाइजेस्ट. देखो, कुछ फूड आइटम ऐसे होता है कि हम कुक करके खाने होते हैं, जिससे क्या करते हैं, जब उसको कुक करते हैं तो खाना थोड़ा सॉफ्टर हो जाता है, थोड़ा टेस्टियर भी हो जाता है खाने में. कुकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर सम काइंड ऑफ फूड, बट वी शुड फॉलो प्रॉपर मेथड्स ऑफ कुकिंग, जिससे हम उसके न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ओवर कुकिंग से क्या होता है भाई, अगर आप ज्यादा कुक करोगे तो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. नाउ मेथड्स ऑफ कुकिंग. अलग अलग मेथड्स हैं, स्टीमिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग और आपका रोस्टिंग. स्टीमिंग, बॉइलिंग, हम राइस को बॉइल करते हैं. फ्राइंग, पकौड़े वगैरह बनाते हैं. रोस्टिंग and baking. They are the different kinds of food item. Food cooked by steaming does not lose its nutrients. देखो, अगर आप खाने को स्टीम करके बना दो तो अपने न्यूट्रिएंट्स को लूज नहीं करना. फूड आइटम्स लाइक इडली आर प्रिपेयर्ड इन स्टीम. द डो यूज्ड टू मेक इडली इन फर्स्ट फर्मेंटेड बाय लीविंग इट ओवर. आप क्या करो, इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ दो ओवरनाइट. एंड फूड इज मोर न्यूट्रिशियस. फूड आइटम लाइक राइस, एग, पल्सेस आर बॉइल्ड एंड ईटन.
और जो पूरीज है उनको हम ऑयल में फ्राई करते हैं। ब्रिंजल हो गया आपका, आपके मीट हो गया, इनको हम रोस्ट करते हैं, ठीक है। और आपका केक, पेस्ट्री और बिस्किट, इसको हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, दे आर बेक। नाउ कीप फूड कवर्ड, हमें खाने को कैसा रखना है, कवर्ड रखना है। आफ्टर कुकिंग फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, फूड आइटम्स एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज कॉज दिस। फूड आइटम जो आपके एक्सपोज हो जाएंगे डस्ट से, फ्लाइज से, उससे क्या होता है, डिजीज कॉज होता है। Flies carry germs to disease, diarrhea, typhoid, which is spread through exposure of food. Therefore, we should not eat cut fruits. हमें cut fruits को नहीं खाना है और ना ही uncovered food को खाना है, ठीक है। Next is food preservation. Food is quite valuable, so we should never waste food. Food is also spoiled by microorganism and other tiny organisms. Food spoil हो जाता है बहुत बार microorganism की वजह से, and we should learn some methods of food preservation. There are some methods जिससे हम food को क्या कर सकते हैं, preserve कर सकते हैं। One by one I will tell you all the method. First is freezing. Germs do not grow easily in cold places, so food can be kept in refrigerator. भाई आपने खाना वाना बनाया, खा लिया, उसके बाद आप क्या करें, अपनी सब्जी को क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रखें, क्योंकि वहां पे जल्दी से जर्म्स ग्रो नहीं करते। The temperature in refrigerator is lower than outside temperature. This prevent germs from growing on food and spoiling. हम मिल्क हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और कुछ कुक फूड हो गए, उनको हम कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर। बॉइल, ये सब मिल्क को बॉइल करते हैं, ठीक है, जिससे वो खराब ना हो। इन दिस मेथड वी कैन प्रिजर्व फूड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वन डे मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड इजीली, तो बाय बॉइलिंग इट फ्यू टाइम्स हम उसको सेव करके रखें। नेक्स्ट इज सॉल्टिंग. We can add salt to preserve pickles and fish. It prevents growth of microbes for a long time. देखा ना, हम salt में salt डालते हैं pickles में, जिससे हम microbes को होने ना दें, उसमें growth ना होने दें। Now sweetening. Excess sugar is food also act as a preservative. देखा ना, आप jams लाते हैं, jellies हो गई, उनको किससे, sugar से preserve करके रखा जाता है। Dehydration. The food items को हम पहले sun में dry करते हैं, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। तो रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड स्टॉप्स जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग इट एंड प्रिवेंट स्पॉइलिंग। जैसे आपका पाउडर मिल्क हो गया या फिर आपका पाउडर सूप हो गया, इनको पहले डिहाइड्रेट करा जाता है। जैसे हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं, ठीक है, रॉ मैंगो हो गए, पोटैटो चिप्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, पापड्स हो गए, इनको हम इसी मेथड से प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट इज स्कैनिंग. व्हाट इज स्कैनिंग? Air is removed from the food and put in airtight can so that germs do not grow. Food items like vegetables, seafood, dairy products, sweet. इनको हम इसी मेथड से प्रिवेंट करते हैं। इनको हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बिना उसको स्पॉइल करें। Next is advantages. What are the advantages of food preservation? Preservation of food enables us to use it for भाई आप फूड को अगर प्रिजर्व करो तो आप उसको लंबा पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। Germs do not grow easily in preserved food और हमसे सेफ भी बनाते हैं खाने। Preservation enables us to enjoy seasonal foods, जैसे हम seasonal fruits enjoy करते हैं, जैसे strawberries, mango, off season. What are the disadvantages? देखो, excess salt and sugar used in preservation, it is not good for us. बहुत बार क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। Some methods of food preservation may leads to loss of nutrients. देखो, हम फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके लूज हो रहे हैं, ठीक है, there is a loss of nutrients. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.